Yes, good morning students. वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विथ विभा मैडम के साथ। देखिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस स्टूडेंट, यस, पे अटेंशन प्लीज। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैन डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Yes, now, what is respiration? Oxidation of food material is known as respiration. Two types of respiration, aerobic type of respiration and anaerobic type of respiration. What do you mean by aerobic type of respiration? Respiration which takes place in presence of oxygen. It is known as aerobic type of respiration. Glucose decomposed in presence of oxygen, converted into carbon dioxide and water, and energy released after such type of activity. Then anaerobic type of respiration, respiration in which activity takes place in absence of oxygen only, and this glucose is converted into alcohol, C2H5OH plus CO2 plus energy. Less amount of energy liberated during anaerobic type of respiration and more amount of energy liberated during aerobic type of respiration. Yes, now we have to discuss about breathing and respiration. What is breathing? Breathing is simple physical type of respiration. Exchange of gases takes place during breathing. We intake oxygen and given out carbon dioxide. We intake oxygen and given out carbon dioxide. This is known as breathing. So breathing is also considered as a physical type of respiration. The different type of chemical reaction takes place inside our body during respiration, chemical type of respiration. Different type of chemistry takes place inside our body. प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. देन द नेक्स्ट स्टेप, Krebs cycle. Pyruvic acid entered in mitochondria, and after different steps, after different type of conversions, these pyruvic acid converted into at last carbon dioxide and water. Formation of ATP takes place, formation of NADPH2 takes place, and formation of FADH2 takes place inside our body. Yes, now you have to think what is NADP and what is FAD. NADP and FAD are coenzyme. Full form of NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. What is FAD? Flavin adenine dinucleotide. It is FAD. So student, you have to think about it. Okay, then the last system is electron transport system. Transfer of energy always takes place as a form of electrons. किसके फॉर्म में? एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफ़र ऑफ जो एनर्जी होता है वो किससे होता है? एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में. यस, नाउ तो तीन प्रकार के एक्शंस बताए मैंने, ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle and electron transport system. Now we will discuss about different type of respiratory organ which are present in our body. So we have to classify these organs into two groups: accessory respiratory organ and essential respiratory organ. Accessory respiratory organ, the first one external knees. The first one is external knees, the nasal path of पैसेज. नेजल पाथ और पैसेज के अंदर 3 टाइप की बोन्स होती हैं: प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड एथेमॉइड. कौन कौन सी? प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड एथेमॉइड. और इनसाइड इट जो अंदर का पैसेज है उसमें घुमावदार बोन्स होती है, टर्बाइनल बोन्स. उन टर्बाइनल बोन्स से पूरा मूव करते हुए जो एयर है वो अंदर की तरफ क्या होती है? एंटर करती है. उसके बाद
इसमें जो बीच में दोनों नेजल पेसल का जो पार्टीशन होता है दैट इज नोन एज मेसेंथेमाइड. व्हाट डू यू मीन मेसेंथेमाइड? अ पार्टीशन विच इज प्रेजेंट इन मिडिल रीजन इज नोन एज मेसेंथेमाइड. इसमें पूरी की पूरी मेम्ब्रेन होती है, श्नेइडरियन मेम्ब्रेन. अंदर जैकबसन ऑर्गन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ स्मेल और ऑल्फैक्टरी. छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. आपने एक चीज़ मार्क की होगी, जब कभी हमको कफ एंड कोल्ड होता है तो हमको एक तो टेस्ट आना बंद हो जाता है और स्मेल आना बंद हो जाती है. तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ स्वेलिंग वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं इसलिए. और नेज़ल इसके अंदर पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि बैक्टीरियाज वगैरह को बाहर एग्जिट करने का काम करती है. इन्फेक्शन के दौरान आपने देखा होगा म्यूकस का सिक्रीशन और ज़्यादा होने लगता है और ये जो सिक्रीशन होता है ये हमारे जो भी इन्फेक्शन है उनको बाहर निकालने का काम करता है. यस, नाउ नेजल पाथ और पैसेज. उसके बाद हम देखते हैं फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. व्हाट इज़ फेरिंग्स? जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड फेरिंग्स है उसको हम नेज़ोफेरिंग्स भी कह सकते हैं. दैट इज़ आल्सो नोन एज नेज़ोफेरिंग्स. और ये जो नेज़ोफेरिंग्स होती है उसके अंदर फेरिंग्स और लैरिंग्स, इस दो चीज़ को हम बात करके पढ़ते हैं. दिस लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स. और मैंने आपको एट द टाइम ऑफ गूगल मीट बताया था कि ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये जो बर्ड्स होती हैं, जो एव्स होते हैं उनके अंदर इसको बोलते हैं सिरिंग्स. उनको हम क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं. हर बर्ड की जो वॉइस है उसकी आवाज़ कैसी होती है? डिफरेंट होती है. और सेम एज ह्यूमन बींग्स के लिए भी कहते हैं कि हर ह्यूमन की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है. सिरिंग्स एंड लैरिंग्स. इसके अंदर इसका जो पोर होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस. ग्लॉटिस के ऊपर जो लीड होती है वो कहलाती है एपीग्लॉटिस. ओके, एपीग्लॉटिस आल्सो मेड अप बाय कार्टिलेज ओनली. और लैरिंग्स को 3 कार्टिलेज सपोर्ट करती हैं, क्रिकॉइड, एरिटेनॉइड और थायरॉइड. एरिटेनॉइड जो होती है उनका नंबर कितना होता है? 2. तो टोटल मिला के किसी बुक में आपको मिलेगा कि 4 कार्टिलेज सपोर्ट करती हैं, क्रिकॉइड, एरिटेनॉइड और तीसरी कौन सी होती है? थायरॉइड. लैरिंग्स में बहुत सारे मसल के फाइबर्स होते हैं. मसल फाइबर्स स्ट्राइक करते जा करके लैरिंग्स को. और साउंड प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज मसल्स फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड ओनली. Okay student, now the next one is trachea. Trachea is near about 12 centimeter in length and it is supported by a C-shaped cartilage ring. C-shaped की cartilage ring से ये क्या करती है? सपोर्ट करती है. खाली समय में ये क्या होता है? कोलैप्स नहीं होता. खाली समय में क्या होती है? ये कोलैप्स नहीं होती. खाली समय में ये कोलैप्स नहीं होती है और इसमें जो कार्टिलेज के छल्ले हैं, जो रिंग्स हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं. नाउ ब्रोंकाई. ब्रोंकाई उसके बाद आकर के 2 पार्ट्स में, दिस इज लैरिंग्स, देन दिस वन इज ट्रैकिया. दीज आर सी शेप के पूरे रिंग्स होते हैं. देन कौन दी? ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस. ब्रोंकस के बाद कौन होती है? ब्रोंकाई. और फिर कौन होते हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं. और इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एल्वियोलाई डक्ट्स होती हैं और एल्वियोलाई डक्ट के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? एल्वियोलाई सैक्स होते हैं. दीज एल्वियोलाई सैक्स आर responsible for capturing of oxygen inside it. Unit of respiration. lungs की यूनिट कौन होते हैं? alveoli होते हैं. millions of alveoli present in each lungs. ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? these are accessory organs and these are essential organ. और जो essential organ है वो कौन होता है? lung होता है. कौन होता है? lungs होता है. नंबर ऑफ लंग्स कितने होते हैं? 2. कितने होते हैं? 2. अपर कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग इज नोन एज थोरेसिक कैविटी एंड लोअर कैविटी इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. थोरेसिक कैविटी कंटेन्स हार्ट एज वेल एज लंग्स. ये दोनों ऑर्गन्स कैसे होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स. यहाँ सामने कौन होता है? स्टर्नम होता है. एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स. 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इनका वॉल्यूम जो होता है इसका लंग्स का कम और ज़्यादा होता है. और रिब्स होती है, दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. रिब्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं. हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स? 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट. 7 रिब्स आर थ्रू,
then 3 are falls and 2 are floating. और जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम कम होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. एंड डायफ्राम, अंडर लंग्स डायफ्राम प्रेजेंट होता है. डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमिलिया. तो ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है और ये जो डायफ्राम होता है ये अपने शेप को बार बार चेंज करता है. और इस डायफ्राम के कारण ही जो लंग्स होते हैं वो कभी उनका साइज़ छोटा हो जाता है और कभी वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. अब देखिए, दिस वन इज़ राइट लंग एंड दिस वन इज़ लेफ्ट लंग. राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 3. राइट लंग के अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर. ये होता है ऊपर वाला एंटीरियर, देन इन्फीरियर, और दिस वन इज़ मिडिल वन. और लेफ्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं? पोस्ट सुपीरियर वाला लोब होता है और एक कौन होता है? इन्फीरियर लोब होता है. इसके अंदर जो कैविटी होती है, दैट कैविटी इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी एंड देन मेम्ब्रेन इज़ नोन एज विसरल मेम्ब्रेन. इस पर विसरल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक जो होती है एक्टिविटी टेक्स प्लेस इनसाइड दिस थोरेसिक कैविटी और प्लूरल कैविटी. न्यूमोटैक्सिक सेगमेंट प्रेजेंट इन पॉन्स वेरोलाई. जब हमारे उसमें बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है. और किसको कैप्चर करने लगता है? ये ऑक्सीजन को अपने अंदर कैप्चर करने लगता है और इससे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है. और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट कॉन्ट्रैक्ट्स और इसमें एक्सहेलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. यस नाउ, अब आप देखिए ये तो क्या हो गया पूरा स्ट्रक्चर, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन. We will revise it. Excretory, external nares, nasal path or passage, supported by premaxilla, maxilla and ethmoid, and between two chambers, mesothermoid present, pharynx and larynx. Pharynx and larynx, then trachea, 12 centimeter of length present in trachea, and trachea supported by C shape. ये छल्लों से कौन होती है? ट्रैकिया सपोर्ट करती है. Then bronchi, bronchi divided into bronchioles. उसके बाद हमने क्या बताया? एल्वुलाइज होती है, एल्वुलर डक्ट होती है. एल्वुलर डक्ट के ऊपर ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर कौन होते हैं? एल्वुलाइज सैक्स होते हैं. और पूरे के पूरे इस पे लंग्स के ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क होता है. क्या होता है? कैपिलरी का नेटवर्क होता है. इसके अंदर लंग्स का नंबर कितना होता है? 2 होता है. राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. राइट लंग के अंदर कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं. लेफ्ट लंग के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं. अपर कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी एंड द लोअर कैविटी इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय डायफ्राम. ये दोनों किससे डिवाइडेड होती है? डायफ्राम से डिवाइड होती है. और इसके अंदर बीच में जो एक मस्कुलर जो पाया जाता है थिक लेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज डायफ्राम ओनली. So it is right lung, it is left lung, upper one is larynx, then trachea, bronchus, bronchi and bronchioles. और इसके बाद लंग्स बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन होती हैं? ऊपर रिब्स होती हैं. ओके, यस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी. रेस्पायरोस्कोप, रेस्पायरोमीटर और रेस्पायरोस्कोप. रेस्पायरोमीटर is device which is used to measure process of respiration. और इसके अंदर एक जो एवरेज रेट है वो कितनी होती है? 15 to 20 होती है. जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन की रेट अधिक होती है और जो ओल्ड पर्सनस होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट कैसी होती है? कम होती है. यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम, इट इज़ नियर अबाउट 500 ml. Inspiratory reserve volume denoted by IRV, it is 250 to 300 ml. Then expiratory reserve volume, it is 1000 to 1100 ml. Residual air volume RV, it is 1100 to 1200 ml. Vital capacity, it is 4600 ml. Total lung capacity 5800 ml. Then inspiratory capacity. What is inspiration? Inhalation to intake air. It is known as inspiration and this capacity is known as inspiratory capacity. It is 3500 ml.
Inspiratory capacity is 3500 ml. Functional residual volume, it is 2300 ml. It is functional residual volume. Then expiratory capacity, it is 500 ml plus 1100 to 1200 ml. So these are different type of volumes and capacities. Yes, now which is main action takes place inside our body during respiration. So hemoglobin is so important for our body. During inspiration, oxygen trapped by hemoglobin, one hemoglobin trap 4 molecules of oxygen. वन हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को ट्रैप करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को. और ये क्या बनाता है? HbO2. क्या बनाता है ये? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है एंड हीमोग्लोबिन. और यहाँ पर भी जो कर्व डिसोसिएट होता है वो कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व. पहले ऑक्सीजन धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, फिर बहुत फास्ट, और उसके बाद जाकर के वो कैसे हो जाती है? सैचुरेशन के स्टेज में आ जाती है. तो यहाँ पर आप देखिए Hb प्लस O2 ये क्या बनाता है? फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. देन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 टाइप से होता है. किसमें? हीमोग्लोबिन से ओनली 7%, with the help of plasma 23%, and H2CO3 as a form of H2CO3 it is carbonic acid, इससे 70%. ओके, तो 100% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो सर्कुलेशन होता है ये डिफरेंट टाइप से होता है. एज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ 7% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा से 23% एंड H2CO3. दिस H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड. इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक anhydrase enzyme it is converted into hydrogen and carbonium ion. It is converted into hydrogen and carbonium ion. और यहाँ पर जब भी कभी कार्बोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज बढ़ने लगता है तब क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाते हैं H प्लस HCO3 में. पॉन्स वेरोलाई के अंदर क्या होता है? ऐसा एक मैसेज पहुँच जाता है और वापस से हम इनटेक करने लगते हैं ऑक्सीजन को, और हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? वापस प्रमोट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, कभी आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में बताते हैं या कभी आप पिकनिक पर गए हो तो कभी कोई बच्चा पानी में डूब गया. तो अगर कोई बच्चा पानी में डूब जाता है तो क्या होता है? पानी में डूबने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल करके पहले उसको उल्टा लिटा करके उसका पेट दबा करके उसके अंदर से पूरा पानी निकालते हैं और फिर उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, माउथ टू पॉट करते हैं, तब उसके अंदर हमने क्या बताया कि उसमें से क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जा कर के लंग्स को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है. क्या कर देती है? लंग्स को एक्टिव कर देती है. अब यहाँ पर आप देखिए कि इसलिए वो कौन सा है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. अब एट लास्ट डिफरेंट टाइप आप बुक्स में देखिएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो बीमारी या डिजीजेस रिलेटेड विद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो उसके अंदर आप देखिए ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा. अस्थमा इज़ वेरी कॉमन. एम्फाइसेमा पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एम्फाइसेमा? जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके अंदर जो एल्वेलाई होती हैं उनकी वॉल्स बिकम रैप्चर हो जाती हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन कैप्चरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. दैट इज़ नोन एज एम्फाइसेमा. निमोनिया, इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज. You know about pneumonia with the help of Streptococcus pneumoniae and Diplococcus pneumoniae. Occupational lung disease ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. इसके अंदर एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टस के कारखाने में काम करते हैं उनमें एस्बेस्टस के फाइबर लंग में एंटर कर जाते हैं, फाइब्रॉइड बन जाता है एस्बेस्टोसिस. उसके बाद सिलिकोसिस, सिलिका जो मजदूर होते हैं उनसे क्या हो जाता है? सिलिकोसिस. को पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और उसके बाद लंग कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो बहुत स्मोक करते हैं उन लोगों को क्या होता है? लंग का कैंसर हो जाता है. सो स्टूडेंट, अभी आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल लंग्स, ब्रीदिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं
और लोग अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके चलते हैं और बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह उसके अंदर लगी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप केयरफुल होकर पढ़ें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शाम को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगेन जुड़े रहिए मुझसे विभाज बायोलॉजी के साथ।